کتنے لوگوں کو پتا ہے ہمارے منسٹری کا نام کیا ہے؟ ہاں جی، کیا نام ہے؟ بلیسڈ ورشپر ہیلنگ منسٹری۔ اب میں کیا چاہتا ہوں، ہم لوگ آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں گانے کی کہ آپ گائیں، کیونکہ ہمیں ارنس مال نے خدا کا بندہ پاسٹر ارنس مال جو خدا میں سو گئے ہیں، انہوں نے ہمیں مسا کیا، محسوس کیا، اسی لیے ہم نے اپنی منسٹری کا نام بلیسڈ ورشپر رکھا ہے کہ ہمیں بلیس کیا گیا ہے خاص اسی کام کے لیے، اسی لیے ہم خداوند کے نام کے لیے یہ سارے کام کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جتنے بھی گانے والے ہیں ان کو ہم دعوت دیں، آپ بھی آگے آئیے، کیونکہ یہ خدا کا کام ہے۔ ہماری منسٹری کا نام بھی یہی ہے، بلیسڈ ورشپر ہیلنگ۔ ہم نے بعد میں لگایا، پہلے ہم نے ہیلنگ نہیں لگایا تھا، لیکن جب خدا نے ہیلنگ کا کام شروع کیا تو پھر ہم نے اس کا نام ہیلنگ بھی ساتھ رکھ دیا۔ جو آپ گا سکتے ہیں گایا کریں، آپ دعا کر سکتے ہیں۔ کسی چرچ میں آپ کو یہ دعوت نہیں دی جاتی، یہ ذہن میں رکھیں۔ آج پاسٹر صاحبان اگر وہ گا سکتے بجا سکتے تو وہ کہتے نہیں کہ بس میں کلا ہی کر سکتا، کسی کو دعوت نہیں دی جاتی، لیکن ہم کہتے ہیں کہ آپ اگر گا سکتے تو آپ گائیں، اگر آپ بجا سکتے تو بجائیں، آپ دعا کر سکتے دعا کریں، آپ خدمت کا کام سر انجام دیں، کیونکہ یہ کام خالی پاسٹر کا نہیں ہے، ایک پاسٹر ہی سارے کام کرتا جائے، بلکہ پوری کلیسیا کو اس کے اندر ملوث ہونے کی ضرورت ہے، اور پھر ہم اس کو آپ کو زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے شرمایا نہ کریں۔ گلے کا مجھے پتا ہے گلے خراب ہے، آج کل سب کے گلے خراب ہے، پتہ ہے نا گلے خراب چل رہا ہے، لیکن جب آپ خدا کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں ذہن سے نکالیں تو خدا کام لے لیتا ہے۔ میں نے صبح میسج کیا، مجھے پتا ہے میں نے کیسے میسج کیا، لیکن جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو خدا مدد کرتا ہے۔ اس لیے گانے والے سن لیں، جو بھی گا سکتا ہے ان کے لیے دعوت ہے۔ اکثر کہتے ہیں کہ آپ لوگ گائیں، ہم تو سنا کریں، کیونکہ ہماری منسٹری کا یہی نام ہے۔ آئیں ہم کے زندہ کلام میں سے ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنی اصلاح کے لیے کچھ چیزیں سیکھیں گے، کیونکہ خدا یسوع مسیح جب صلیب پہ تھے، جب ان کی موت واقعہ ہوئی، جب انہوں نے اپنی جان دے دی، تو اس وقت بہت سارے واقعات ہوئے، اور وہ واقعات کیا تھے آئیں ذرا دیکھتے ہیں۔ متی کی انجیل 27 باب بیٹھے رہے، پچاس ایت سے لے کے 53 ایت تک پڑھیں گے ذرا۔ متی 27 50 سے 53 ایت تک۔ یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی، اور بپتس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، اور زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئی، اور قبریں کھل گئی، اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے، اور اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے اور بہتوں کو دکھائی دیے۔ آمین۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں پہلی 50 آیت میں لکھا ہے یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ نڈھال نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ پوری طاقت کے ساتھ اپنی جان دینے کے لیے تیار تھا۔ اس نے للکار کر کہا کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اس کے اندر قوت تھی۔ آج ہم جب مرتے ہیں تو ہم شاید مجبور ہوتے ہیں، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، ہم اس طریقے سے مرتے ہیں کیونکہ ہماری موت واقعہ ہونی ہوتی ہے، لیکن خدا یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں، اس نے اپنی موت کا خود انتخاب کیا تھا۔ آج کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اپنی موت کا انتخاب کرے، لیکن خداوند یسوع مسیح وہ ہستی ہے جس نے انتخاب کیا کہ میں زمین پہ جا کے صلیب پہ جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے اپنی موت کا خود انتخاب کیا تھا، اس لیے وہ بڑے اچھے انداز سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صلیب پر اپنی جان کو دیتا ہے۔ آئیں ذرا ایک حوالہ دیکھتے ہیں کہ اس نے کیوں یہ سارا کچھ کیا، کیونکہ اس کو جان دینے کا بھی اختیار تھا اور جان
देने का भी इख्तियार था। निकालने मेरे साथ जरा यूहन्ना 10 बाब 17 और 18 पढ़ते जरा जल्दी से। 122 नंबर पेज है। बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूँ ताकि उसका बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत करता है कि मैं अपनी जान देता हूँ। खुदावन यीशु मसीह ने खुद इंतखाब किया कि मैं जान दूंगा। कहता बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत करता है कि मैं अपनी जान देता हूँ। आज जब हम भी उससे मोहब्बत करते हैं, अगर चाहते हैं कि खुदावंद आपके साथ चले, आपसे मोहब्बत करे, तो आज हमें उसकी वफादारी में चलने की जरूरत है। हम जान नहीं दे सकते, मुश्किल सा काम है, लेकिन अगर हम उसके साथ चलते हैं, हम दुनियादारी को तर्क करते हैं, तो ये भी जान देने के भी पास पास ही चले जाता है। इसलिए आज हमें जरूरत है कि हम सारी चीजों को देखिए। लिखा है कि बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं जान देता हूँ, जाके ताकि उसे फिर ले लूं, ताकि फिर उसे ले लूं। यीशु मसीह मर गया, कब्र में गया, दफन हुआ और तीसरे दिन फिर जी उठा। उसके पास ये इख्तियार था कि मैं अपनी जान दे भी सकता हूँ और इसको वापस भी ले सकता हूँ, क्योंकि वो खुदा था। इसलिए उसे ये पूरा इख्तियार था कि वो मर जाता और फिर तीसरे दिन जी उठता। जाके कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, कोई मुझे उससे छीनता नहीं है। अगर उस वक्त के लोग ये समझते थे कि हमने खुदावंद यीशु मसीह को मार दिया है, तो ये उनकी भूल थी। वो कोई इख्तियार नहीं रखते थे कि वो खुदावंद की जान को निकाल सकते या उससे छीन सकते। ये तो खुदावंद यीशु मसीह ने रजा कराना तौर पर ये कहा था कि मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। तो कहता है कोई मुझे मेरी जान को कोई भी छीन नहीं सकता। जाके बल्कि मैं उसे आप ही देता हूँ, बल्कि मैं उसे आप ही देता हूँ। कहता मेरी जान को कोई मुझसे छीन नहीं सकता, बल्कि मैं अपनी जान जो है मैं अपनी रजामंदी से क्या करता हूँ, देता हूँ। जाके मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उसे फिर लेने का भी इख्तियार है। मुझे उसे देने का भी इख्तियार है और वापस लेने का भी इख्तियार है। जी आगे। ये हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला, ये हुक्म मुझे मेरे बाप से मिला है। बाप ने बताया था। मैंने सुबह हमने एक हवाला पढ़ा था कि खुदावंद यीशु मसीह ये जब उसको सिखाया जा रहा था तो वो सारा कुछ सीख के आया था। आज हमें भी जरूरत है कि हम इन चीजों को जाने। अब तो जब देखते दुनिया को तो लिखा है और मुकद्दस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और जमीन लर्जी और चट्टानें तिड़क गई। जब उसकी ललकार ऐसी थी, उसने इतनी बुलंद आवाज से जान दी कि चट्टानें क्या हो गई, तिड़क गई। और लिखा है कब्रें खुल गई, कब्रें तक खुल गई। यीशु मसीह ने जब जान दी तो हम देखते हैं कि बहुत सारी चट्टानें जो है वो तिड़क जाती हैं। उसने इतनी बुलंदी से, हालांकि उस पर जितना कुछ हो चुका था, उसको कोड़े मारे गए थे, उस पर इतने जुल्म हुए थे कि उस वक्त वो नढाल नजर आता है, लेकिन फिर भी जब उसकी मर्जी होती है उस वक्त वो अपनी जान को देने का इख्तियार रखता था। इसलिए उसने अपनी जान जब दी तो लिखा है और मुकद्दस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और जमीन लर्जी और चट्टानें तिड़क गई। हम देखते हैं कि मुकद्दस का पर्दा जो था वो एक दीवार हमारे और खुदा के दरमियान में क्या थी, दीवार थी। और साल के बाद मुकद्दस में सिर्फ काहिन जो था वो जा सकता था और किसी शख्स को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के कुर्बान होने पर, शरीर पर जान देने पर, खून बहाने से आज हमें ये शर्फ हासिल है कि छोटे से छोटा ईमानदार जो है वो भी खुदावंद के पास आ सकता है। जब हम बैठ के दुआ कर सकते हैं, हम खुदा से मुलाकात कर सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह की जान देने से पहले ऐसा कोई भी अमल नजर नहीं आता, बल्कि उस वक्त सिर्फ कहन जो था वो अंदर जाता था और बाहर कई बार कहन जो था वो भी मर जाता था। अगर बाइबल को आप स्टडी करें तो कहन के बारे में लिखा है कि कहन आज मास्टर साहबान रस्सा बांधते, अपनी कमर पर रस्सी बांधते, आप देखते होंगे फादर साहबान, पास्टर साहबान रस्सी बांधते हैं। तो ये एक निशानी थी कि उस वक्त कहन जो था ये पाक तरीन मकाम में जब दाखिल होता था तो रस्सा उसकी कमर में बांधा जाता था। तो आज भी
कुछ यूनिवर्सिटियों में ऐसा चल रहा है, एक घंटी बजाई जाती है और वो घंटी उसके हाथ में दी जाती थी, और जब वो कहन अंदर जाता था रस्सा ढीला किया जाता था, और जैसे जैसे घंटी की आवाज चलती थी उनको पता था कि कहन जो अभी तक जिंदा है। और फिर अगर उसकी घंटी की आवाज बंद हो जाती थी तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसकी लाश को जाके उठा लेते, क्योंकि खुदा ये खुदा है, खुदा गजबनाक था, खुदा गुनाह को नहीं देखता था। जो गलती होती थी वो कहन को भी उसी वक्त मार देता था और फिर रस्से से उसको बाहर फेंका जाता था। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने जब जान दी तो हैकल का पर्दा जो जुदाई की दीवार थी वो ऊपर से लेके नीचे तक हट जाती है, और जुदाई जो है खुदावंद के हमारे और खुदा के दरमियान वो सारी की सारी खत्म हो जाती है। और फिर आगे जब हम पढ़ते हैं इसी की जब 52 को पढ़ते तो लिखा है और कब्रें खुल गई। क्या हो गया? बच्चा कौन है? लिखा है और कब्रें खुल गई और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे। अब जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह ने जान दी बहुत सारी कब्रें खुल गई और मुर्दे जो थे मुकद्दसीन के ईमानदारों के जिस्म जो थे वो जी उठे और वो उनके शहर में आए। लेकिन ये भी याद रखें कि जब मुर्दे जिंदा हुए वो मुर्दे 3 दिन तक कब्रों में लेटे रहे। जिंदा तो वो खुदावंद यीशु मसीह के मौत पर ही हो गए। जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह ने ललकार कर अपनी जान दी, लिखा चट्टानें तिड़क गई, हर चीज बलिया भेंट होने वाली थी, लेकिन बहुत सारी कब्रें भी खुल जाती हैं और उनके अंदर से मुकद्दसीन जो हैं वो बाहर आते हैं। लेकिन वो उसका जिक्र हमें मिलता है कि वो 3 दिन तक वैसी रहे। आज दोबारा से पढ़ते कब्रें खुल गई और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे, और उसके जी उठने के बाद किसके जी? बेटा इसको थोड़ी देर के लिए बात देखो। खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के बाद जिंदा तो वो हो गए, उनका जिक्र मिलता है कि जिंदा तो वो हुए, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जब जी उठे, खुदावंद यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे। इसका मतलब है कि जब खुदावंद यीशु मसीह कब्र से बाहर आए उस वक्त वो कब्रों से बाहर आए, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो जिंदा होने में पहला फल है, वो जी उठने में पहला फल है। सबसे पहला वही है जो मुर्दों में से जी उठा। इसलिए वो तमाम मुकद्दसीन कब्रों में रहे, लेकिन तीसरे दिन जब खुदावंद यीशु मसीह कब्र अपनी से बाहर आते हैं तो उस वो भी बाहर आ जाते हैं। और आज हमें एक हवाला पढ़ते जरा इब्रानियों, क्योंकि वो जुदाई की दीवार जो थी, सुबह भी मैंने ये कौन की थी कि खुदावंद यीशु मसीह ने वो पर्दा जो हमारे दरमियान बाप और हमारे दरमियान था वो उसके वसीला से खुल गया है। इब्रानी 10 बाब और उसकी 19 और 20 आयत पढ़ दें। बस ऐ भाइयों, चूंकि हमें यीशु के खून के सबब से उस नई और जिंदा राह से पाक मुकाम में दाखिल होने की दलेरी है जो उसने पर्दा यानी अपने जिस्म में से होकर हमारे वास्ते मखसूस की है। जैसे मैंने बताया कि आज छोटा ईमानदार जो है वो भी खुदा के पास आने की जुर्रत कर सकता है। हम अपनी हमदोसना के वसीला से गाते, जो गाने वाले हैं जब वो गाते हैं तो वो उस वक्त आके हजूर में आ जाते। लिखा है जहाँ साज और आवाज मिल जाते हैं मेरा पर आ जाते हैं। खुदा ऐसे परस्ता ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करते हैं। यकीन जाने कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने तब अपनी जान दी सलीब पर, तो जब पर्दा फटा तो ईमानदारों के लिए दरवाजा खुल जाता है। आज हम अपनी हमदोसना के वसीला से, दुआओं के वसीला से छोटे से छोटा ईमानदार जो है वो भी खुदा के पास आने की जुर्रत कर सकता है। और फिर आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने उनको देखा और फिर वो क्यों लेटे रहे। आज बाइबल इसका कोई जिक्र नहीं करती कि वो जो जिस्म उठे थे उनका बाद में क्या बना, वो आसमान पे चले गए खुदावंद यीशु मसीह के साथ, या आप वो फिर दोबारा से मरे, उनका कोई भी जिक्र नहीं है। बाइबल जहाँ खामोश हो जाती है वहाँ हमें भी खामोश रहने की जरूरत है। आइए जरा एक हवाला पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा होने से पहले वो क्यों ना बाहर निकले।
वो ईमानदार जो जिंदा हुए, मगर सीन जिंदा हुए, वो कब्र से क्यों बाहर आए? आए जरा एक हवाला देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 15 बाब उसकी 54 और 55 आयत पढ़ेंगे। 44, 54 और फिर 55 दो आयतें पढ़ेंगे इसकी। और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयाती अब्दी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा होगी। ए मौत तेरी फतह कहाँ रही? ए मौत तेरी फतह कहाँ रही? खुदा यीशु मसीह ने मौत पर फतह पाई। इससे पहले कोई भी ऐसा शख्स, कोई देवता, कोई देवी ऐसी नजर नहीं आती जिसने मौत पर फतह पाई हो। ये सिर्फ हमारे खुदा यीशु मसीह को शर्फ है कि आज भी उसकी कब्र जो है वो खाली पड़ी है। आए एक और हवाला देखते हैं। और बाप 25 बाप और उसकी 8 आयत में पढ़ेंगे। अब आज हमारे लिए, ईमानदारों के लिए ये एक दावत है, खुशी की बात है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए क्या करने वाला है। जब वो 1000 साल बादशाही में आएगा तो फिर हम भी एक बार मरेंगे, लेकिन दूसरी मौत पर हम भी वाक़या नहीं होगी। हम भी क्या करेंगे? मौत का मजाक उड़ाते हुए खुदावंद यीशु मसीह के साथ आसमान पे चले जाएंगे, क्योंकि ईमानदारों पर दूसरी मौत का कोई भी इख्तियार नहीं है। पढ़े, वो मौत को हमेशा के लिए नाबूद करेगा। वो मौत को हमेशा के लिए नाबूद करेगा, बिल्कुल खत्म कर देगा। ये वो मौत है जो दोबारा होने वाली है, लेकिन गुनाहगारों के लिए दोबारा मौत वाक़या होगी, लेकिन ईमानदारों के लिए यही मौत जो पहली मौत होगी वही मौत होगी। लेकिन जब वो जी उठेंगे खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने पर, 1000 साल बादशाही पर, उसके बाद उनकी मौत वाक़या नहीं होगी। ये हमारे लिए खुशी की बात है। आगे, और खुदा सबके चेहरों से आंसू पहुंच खुदावंद खुदा सबके चेहरों से आंसू पहुंच डालेगा और अपने लोगों की रसवाई तमाम सरजमीन पर से मिटा देगा। अपने लोगों की रसवाई जो है तमाम जमीन की सरजमीन से क्या करेगा? मिटा देगा। क्योंकि खुदावंद ने ये फरमाया है, क्योंकि खुदावंद ने ये फरमाया है, खुदावंद ने ये फरमाया है कि मैं मौत को मुकम्मल तौर पे क्या कर दूंगा? खत्म कर दूंगा। ईमानदारों पे दूसरी मौत वाक़या नहीं होने वाली। इसलिए आज हमें जरूरत है कि हम खुदावंद के साथ वफादारी दिखाएं, और खुदावंद के साथ जब चलते रहेंगे तो खुदा हमें उस जिंदगी में लेके जाएगा। जब वो अपनी 1000 साल बादशाही में आएगा तो फिर वो हमें भी, हम भी कर बादलों में उड़कर उसका इस्तेमाल करेंगे, और फिर वहां जहां वो होगा वहीं हम भी रहेंगे, और हम पे दूसरी मौत का कोई भी इख्तियार नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह जब सलीब पर थे, जब उन्होंने जान दी, तो हम देखते हैं कि उस वक्त बहुत सारे मुकद्दसीन जो थे वो जिंदा हो गए। खुदावंद के कलाम के मुताबिक आज भी खुदावंद यीशु मसीह जब 1000 साल बादशाही करने वाला आएगा, तो जो लोग हजारों सालों से भी मरे होंगे उनके जिस्म भी दोबारा से जी उठेंगे, वो दोबारा से उठेंगे, और खुदावंद यीशु मसीह का बादलों में उनके इस्तेमाल करेंगे। आए इस कलाम के मसला से हम सबको बरकत दे। आए अपने सिरों पर दुआ करें।